बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। इट्स अवर लेक्चर 6 फ्रॉम चैप्टर 2 that is about transport system in humans and plants. Previously we have discussed the transport system in humans. Now we are going to study the transport of materials inside plants. We'll see what are the needs of plants and what materials are needed to be transported from roots to the leaves and from leaves to the roots. The first part in this regard is the water absorption by roots. The SLO we will try to achieve through this lecture is describe absorption of water in plants through roots. First of all, we'll have the introduction about the transport system in plants and see what materials are there to be needed of transportation. What are the structures responsible for the transportation, as well as the driving forces or the push factor for this transportation. The topic 2.6 on our textbook on page 26 will support us. Now first of all we see what's the transport system and why there is a system in plants, and then we'll study the absorption of water in plants through roots. It is the first step in transportation of materials in plants. The page 27 is the continuation of topic 2.6. We'll discuss the concepts given at these two pages. So what's the transport system in plants? As we all know, the transport system is the system for the movement of materials from one place to another. And in living organisms, we can say that from one organ, from one tissue to another. Look at the pictures carefully. The materials which are transported in plants are water, sugar, or you can say it the food prepared by the plants in leaves, the sugar or the food is prepared in leaves, as well as exchange of gases such as carbon dioxide and oxygen. These three are the materials which are mainly transported in plants. Water is acquired from the soil outside the plant where roots are present, whereas food is prepared in leaves and gases just as carbon dioxide and oxygen are exchanged through the air. These gases, primarily carbon dioxide, is needed by the plant or the leaf to prepare food. So the transport of carbon dioxide is just within the leaf, not the whole plant is involved in gaseous exchange, whereas oxygen is released out of the plant as byproduct. Water, which is also required by the leaves to prepare food, is absorbed through roots, and the food which is prepared in leaves is required by all the cells in the plants, whether they are of stem, whether they are of root, to grow well and to nourish. In order to transport water from roots and the food from leaves, there are two tissues, xylem and phloem.
These two structures are elongated tubes that are interlinked, as well as these two structures connect each part of the cell, each part of the plant, just like the net of blood vessels spread throughout the body in animals. Xylem is specific for the transportation of water, and the phloem is specified for the transportation of food or sugar. And the gaseous exchange, the third material which is needed to be transported within the leaves, are made through stomata, specialized structures in leaves. They are only present in leaf and none other part of the plant. These stomata allow the carbon dioxide to let in the leaf, as well as they expel the oxygen as byproduct out of the leaves, as it is not required by leaves. Now the process of transportation of water through xylem is known as transpiration. Whereas the transportation of food through phloem is called translocation. In our today's lecture, we are concerned with the process of transpiration or the movement of water through the plants. We'll see how the water is absorbed by the roots and is conducted to the uppermost leaf of the plant. So, our lecture has two parts: absorption as well as conduction of water. And the conduction of water within the plant is known as transpiration. The second one is movement of food, which is called translocation. In the today's lecture, we will discuss the absorption and conduction of water. As you all know, the inlet of water inside the plant is made through roots. And the driving force which made it possible is osmosis. Osmosis is actually the movement of materials from the area of higher concentration to an area of lower concentration. Water, through the process of osmosis, and enter into the roots from the external environment. There are two paths by which the entered water flow throughout the root. So आपने देखा कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट हेयर्स में थ्रू सेल वॉल मूव और फिर थ्रू साइटोप्लाज्म. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि पानी सेल वॉल में भी मूव कर रहा है. ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटा है. और प्लाज्मोडेस्माटा वो चैनल्स हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं. इस पाथ को सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं. और अगर पानी सेल वॉल के थ्रू मूव करे और फिर जाइलम को एक्सेस करे तो इस पाथवे को एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं. अब पानी तो एब्जॉर्ब हो गया रूट्स में. अब रूट्स में ये मूव कैसे करेगा और जाइलम तक फ्लो कैसे करेगा और जाइलम फिर इस पानी को आगे कंडक्ट कैसे करेगा. द होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम.
ट्रांसपरेशनल स्ट्रीम को समझने के लिए इस पिक्चर को देखते हैं। ये जो ब्लू एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई भी दिए हैं। These are the structure of water molecules, and this projection is the root hair. This is are actually the root hair, which are surrounded by soil particles. Containing water molecules. These water molecules are entered into the root through osmosis. Osmosis is simply the movement of water molecules from the area of higher concentration to an area of lower concentration. It is the below soil area. When water is entered into the cells and gathers and is collected inside the roots, movement of water in root cells increases. Ultimately, the amount of water molecules has been increased in this area, in root area. This is the epidermis, the outermost layer of root. You will study in higher classes in detail the epidermis, and this is the cortex, a layer of cell next to epidermis. The absorbed water in root section exert pressure that pushes water and minerals up in the plant. Now these roots are connected to stem. So here is the connection between stem and roots. In roots there were xylem and phloem. These xylem and phloem extended towards stem. It is the stem part, and this section, this green section, is the leaf part. Although the gathered water exert pressure on the movement of water molecules, but this pressure is not enough to lift water up to certain heights. ये फिजिकल प्रेशर सिर्फ पानी को जाइलम या जाइलम तक पहुंचा सकता है, इसे हेल्प आउट नहीं कर सकता है कि ये स्टेम में ऊपर हाइट्स तक मूव करे। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट वाले दरख्तों के ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। तो इतनी हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए सिर्फ ये पानी का प्रेशर, फिजिकल प्रेशर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ और ड्राइविंग फोर्सेस भी हैं। यहाँ पे एक और ड्राइविंग फोर्स इवेपोरेशन फिनोमिना है। अब इवेपोरेशन फिनोमिना एक तरह का सक्शन क्रिएट करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से पानी पी रहे हैं, तो जैसे ही आप वाटर को सिप करते हैं, सक करते हैं, तो मज़ीद पानी स्ट्रॉ के निचले हिस्से से ऊपर स्ट्रॉ की तरफ मूव करता है। इसी तरह इवेपोरेशन फिनोमिना में भी आप जानते हैं कि इवेपोरेशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब जैसे जैसे इवेपोरेशन के थ्रू वाटर यहाँ से रिलीज आउट होगा, स्टोमेटा के थ्रू पानी यहाँ से भी पानी निकलेगा। ये सारा H2 है, ये भी जो ब्लू एरोस हैं वो सारे H2O को डिनोट करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स स्टोमेटा के थ्रू लीफ से रिलीज आउट किए जाते हैं। तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, एनवायरनमेंट में जाएंगे, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता चला जाएगा। उस सक्शन की वजह से पानी रूट से स्टेम में मूव करता चला जाएगा, यानी ऊपर से पानी का इखराज नीचे से पानी की मूवमेंट को सपोर्ट करेगा, उसे अपनी तरफ पुल करेगा। एक दूसरा फिनोमेना जो स्टेम में वाटर की मूवमेंट को फेवर करता है वो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जिसे एडहेशन भी कहते हैं, रूट से स्टेम में वाटर की मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। अब कैपिलरी एक्शन क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कुछ डिस्टेंस पे। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके एक बड़ा वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। वो वाटर मॉलिक्यूल अपने इर्द गिर्द जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। इसी तरह एक कंपैरेटिवली एक लार्जर वाटर मॉलिक्यूल्स
वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये लार्जर वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी दीवारों के साथ जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हैं उनको अपने साथ मिलाता चला जाएगा, अट्रैक्ट करता चला जाएगा इसी तरह, और पानी ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा। ये एडहेशन का फॉर्मूला जाइलम की वेसल्स जो कि आप जानते हैं नैरो ट्यूब्स हैं, उनमें वाटर की मूवमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, और इस फिनोमिना को, इस कैपिलरी एक्शन को फेवर करता है सक्शन प्रेशर। यानी इसको, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, इन वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तरफ से इवेपोरेशन या सक्शन के थ्रू ऊपर पुल किया जाएगा, ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा, और ये पुलिंग फोर्स एक्चुअली वाटर को मूव करेगी रूट से स्टेम की तरफ और स्टेम से लीफ में, और लीव्स में फिर इनका रिलीज आउट हो जाएगा, इनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी थ्रू स्टोमेटा in the environment. So, by capillary action, an unbroken column of water develops in xylem that takes water to heights where it is evaporated through leaves. Here you can see this is called transpiration, and the stream that develops from the root to the stem and continues to the leaves is known as transpirational stream. The more is the rate of transpiration, the more is the absorption of water through roots. So, water moves in the plant through transpirational stream. It is first absorbed in the roots by osmosis and then is pulled up by two forces. One of them is evaporation or the suction force, and the second one is capillary action or adhesion force. These two forces push water upward where it reaches to the uppermost leaves and where it is released out through stomata. As the result of evaporation. As much as the evaporation happens, the more water is absorbed by roots and is pulled forward. That's how the water moves inside the plant through roots. Next comes the homework. First of all, open your page 30 where you will find the test exercise 2. The first part of test exercise 2 is fill the circle of correct option against each statement. You are provided with a situation or a statement. Read the statement or situation carefully and then observe the options given for each statement. Only one option from these 4 statements is correct. You have to analyze the statement and then find out the right answer. Number 3 question is related to our lecture, which is teacher Sarah says the water molecules move from an area of high concentration of water to an area of lower concentration of water through cell membrane. What is the process? You are provided with the definition of a process taking place inside the plant for the movement of materials, especially water. So you have to name the process, whether it is diffusion or osmosis or transpiration or evaporation. All these 4 processes takes place in plants. You just have to find out the right one. Find it and then fill the respective circle. अब हम सॉल्व करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन नंबर 4. Through which of the following parts food from leaves is provided to rest of the plants? आप जानते हैं कि प्लांट में फूड एंड वाटर की कंडक्शन के लिए 2 स्ट्रक्चर्स हैं, जाइलम और फ्लोएम. अब इनमें से फूड के लिए कौन सा स्पेसिफाइड है वो आपने फाइंड आउट करना है. क्या फूड एपिडर्मिस के थ्रू ट्रांसफर की जाती है या रूट हेयर्स के थ्रू या जाइलम या फ्लोएम? इनमें से जो भी राइट आंसर है आप उसका रिस्पेक्टिव सर्कल फिल करेंगे. अब आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी है हमारा आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. आपने आंसर्स की स्टेटमेंट को, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और इसका ब्रीफ आंसर लिखना है. डिफाइन टर्शरी रूट्स. नंबर 1 क्वेश्चन इज टर्शरी रूट्स. आप जानते हैं कि रूट्स 2 से 3 तरह की होती हैं. रूट्स की मुख्तलिफ इकसाम है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, देन टर्शरी रूट्स एंड देन क्वाटर्नरी रूट्स. इनमें से टर्शरी रूट्स कौन सी हैं आप उसे ब्रीफली सिंगल लाइन डेफिनेशन लिखेंगे. हाउ डज जाइलम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट? इट इज द क्वेश्चन 2. अभी हमने जाइलम में वाटर की मूवमेंट को पढ़ा. आप इस सारी मूवमेंट को अपने वर्ड्स में ब्रीफली समराइज करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिनके थ्रू वाटर मूव करता है जाइलम में. ये दोनों फोर्सेस आप रूट में भी डिस्कस करेंगे
और स्टेम में भी। पार्ट बी से हम आज के लेक्चर के लिए सिर्फ यही 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आइए अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, जो कि पेज 31 पे है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू कॉल द फर्स्ट रूट दैट अराइव्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। फिर वही आगे के 3 टाइप्स ऑफ रूट्स जो हमने देखी हैं, ज़्यादातर 4 भी होती हैं, उनमें से वो रूट जो सबसे पहले अराइज होती है रेडिकल में से, जब एक सीड जर्मिनेट करता है, वो रूट कौन सी है? क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है? हमने अपने लेसन में डिस्कस करते हुए रेडिकल को डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन अगर आप बाय डेफिनेशन गौर कीजिए प्राइमरी रूट की, सेकेंडरी रूट की, टर्शरी और क्वाटरनरी रूट्स की, तो आप इजीली राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। द एरिया ऑफ यंग रूट, नंबर 7 क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ यंग रूट्स वेयर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रूट एपिडर्मिस में होती है, या फिर रूट हेयर में, या फिर रूट कॉर्टेक्स में, या फिर रूट वेस्कुलर बंडल्स में। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूट का एक स्ट्रक्चर अपने सामने रखिए, उसमें देखिए कि पानी से सबसे ज्यादा क्लोज स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएं तो सबसे पहले रूट हेयर्स हैं, फिर एपिडर्मिस है, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स है, और इसके बाद बाकी के लेयर्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स वगैरह। तो आप देखिए कि पानी से सबसे ज्यादा क्लोज एरिया सॉइल में क्लोज क्या होगा, और उसके स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए कि क्या वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो आप इजीली राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन इज द की ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज रूट हेयर, जाइलम, phloem or epidermis. It is very easy question. We have discussed it many time in our lecture, so you can find out the right answer very easily. Review exercise से ये 3 क्वेश्चन हमारे आज के SLO से रेलिवेंट हैं। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ, which is again to answer the questions very briefly. नंबर 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, which is to define transpiration. We discussed this in the whole lecture. What is transpiration, how does it take place, so you can write it easily. नंबर सी, पार्ट सी क्वेश्चन में आप नंबर 6 सॉल्व करेंगे, elaborate the absorption of water in plants through roots. आप इसमें डायग्राम भी बनाएंगे, बल्कि मस्ट है डायग्राम बनाना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला होमवर्क हमारा समर पैक में से है। समर पैक का SLO 6 जो हमने डिस्कस किया है आज, उसको देखिए, वो बताइए वेयर हैज दिस SLO बीन एड्रेस्ड इन द बुक। आप अपनी बुक का नाम लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे, हेडिंग नंबर या हेडिंग नेम लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपका पर्टिकुलर SLO आपने बुक में कहाँ फाइंड किया और किस हेडिंग में फाइंड किया। वाई डू वी स्टडी दिस SLO, ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसका आंसर देखिए, और इससे आप मालूम होगा कि हर SLO की एक अपनी इंपॉर्टेंस, एक अपनी वैल्यू है, और हर SLO कोई ना कोई कॉन्सेप्ट देता है। इस SLO के थ्रू हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा वो आपको इससे पता चलेगा। फिर आप आइए अपनी एक्टिविटी 2.4 की तरफ। लुक एट द गिवन पिक्चर, आपको एक तस्वीर दी गई है, एंड एक्सप्लेन व्हाट इज शोन अबाउट रूट सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। यहाँ आपको रूट सिस्टम बताया गया। आप जानते हैं कि रूट सिस्टम में 3 से 4 तरह की रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स, क्वाटरनरी रूट्स एंड रूट हेयर्स। ये सारे मिलकर रूट स्ट्रक्चर या रूट सिस्टम बनाती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रूट हेयर है। रूट हेयर सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल, सॉइल पार्टिकल्स और एयर से। ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, या रूट क्या क्या काम करती है, इस पिक्चर को देख के आपको आप जो भी अंडरस्टैंड करें उससे अपने वर्ड्स में ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट कम्स द MCQ सेक्शन ऑफ समर पैक। नंबर 14 MCQ देखिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अलोंग दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज। अगेन आपको एक डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को पढ़ें और राइट आंसर को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग क्या है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई से लो की तरफ
अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेंगे। तो क्या ऐसी मूवमेंट ट्रांसपिरेशन कहलाती है या डिफ्यूजन कहलाती है या ट्रांसलोकेशन या फिर ओस्मोसिस? जो भी राइट आंसर आपको लगे आप उसे मार्क कीजिए और फिर बताइए कि व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन, यानी आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, क्या रीजन है उस आंसर के सही होने की। नेक्स्ट पेज पे आइए। वाटर इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर, अब प्लांट्स में वाटर के क्या फंक्शंस हैं, क्या पर्पस है वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो आपने फाइंड आउट करना है। फूड प्रोडक्शन है, एंकरिंग फॉर द प्लांट इनटू द सॉइल है यानी एंकरेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड है, या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। स्टेटमेंट को गौर से देखिए और आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगेन आप हर आंसर की रीजन भी बताएंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट्स एज प्रोडक्ट, एंजाइम, रिएक्टेंट, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें ग्लूकोज या फूड आप कह सकते हैं प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट मिलती है। इस इक्वेशन में देखिए कि पानी किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, वहां से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये एज ए प्रोडक्ट यूज हो रहा है या ये एंजाइम है या ये रिएक्टेंट है या ये सोल्यूशन है। जो भी राइट आंसर है आप उसकी रीजन बताएंगे। नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। प्लांट का रूट सिस्टम इनमें से कौन सा काम नहीं करता? क्या रूट सिस्टम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, या मिनरल ट्रांसलोकेशन नहीं होती, या प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं होती, या डिजिडिटी इन द सेल्स नहीं होती? राइट आंसर फाइंड कीजिए और उसकी रीजन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अपने समर पैक में क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन को इन डिटेल स्टडी किया है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर 1 से 2 लाइनों में आप बताएंगे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक्चुअली है क्या। फिर नंबर 9 क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, नेम द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। सो जो भी प्रोसेस हो आप उसको डिफाइन किया, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी गई है। 11 क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम। ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम हमने डायग्राम की मदद से पढ़ी थी, एक दफा फिर देख लेते हैं उस डायग्राम को। ये वो डायग्राम है जो हमें ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम के बारे में बताती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड देन transferring it to stems and then its release out of leaves through evaporation. And what are the forces behind? 2 forces are behind this transpirational stream. One is evaporation or suction pressure, other one is capillary action or you can say it adhesion. So अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे, इसकी फोर्सेस को गौर से देखेंगे तो आप ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, अपने समर पैक में क्वेश्चन 17 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट के बारे में आपने ग्रेड 6 में भी पढ़ा है, अभी भी आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि रूट सिस्टम क्या होता है। सो आप इसको इजीली बता सकते हैं। इसमें आपने रूट सिस्टम के पार्ट्स बताने हैं कि रूट सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और इनका फंक्शन क्या है। डिफाइन ऑस्मोसिस, गिव एन एग्जांपल विद रेफरेंस टू प्लांट। अभी हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया है और आप इसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ऑस्मोसिस किस जगह पे होती है। नंबर 19 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। व्हाट आर द पर्पस ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इसको सिंपल वर्ड्स में आप यूं भी कह सकते हैं कि व्हाई इज वाटर नीडेड बाय द प्लांट्स। व्हाट विल हैपन इफ वाटर इज नॉट कंडक्टेड, यानी अगर प्लांट को पानी ना मिले तो क्या होगा। आपने साइंटिफिकली एक बॉटनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इनसाइड द प्लांट वाटर के क्या क्या फंक्शंस हैं और अगर वो फंक्शंस परफॉर्म ना हो तो ओवरऑल प्लांट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब आपने बताना है। एक्सप्लेन हाउ डज वाटर रीच टू द एपिडर्मल सेल ऑफ लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड। वाटर एंटर्स इनटू द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट एंड
ultimate destination of water is the epidermal cells of leaf. How does it takes place? यानी आपने पूरी ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम का रूट बताना है कि पानी कैसे रूट्स में कैसे एब्जॉर्ब होता है, स्टेम में कैसे दाखिल होता है और फिर लीव्स तक कैसे पहुंचता है। ये सब आप इसके आंसर में डिस्कस करेंगे। नंबर 21st क्वेश्चन इज व्हाट आर रूट हेयर, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट टू प्लांट। यहाँ पे आप रूट हेयर का फंक्शन बताएंगे। आज के लिए इतना ही होमवर्क था आज के एसएलओ से रिलेटेड। नेक्स्ट होमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट एसएलओ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।